ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी, प्रसाद जी और टेम्पल कनेक्ट यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए। आज का मेरा विषय है एम्पावरिंग टेम्पल इकोसिस्टम्स। तो इसके अंतर्गत हम ये बताना चाहते हैं कि हाउ द टेम्पल्स कैन बिकम मोस्ट सिस्टम डिपेंडेंट एंड लीस्ट पर्सन डिपेंडेंट, मोर प्रोएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, कंसर्न विद बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कई बार मंदिरों में समस्या आती है, व्यक्ति चला जाता है तो फिर सब कुछ सिस्टम ठप हो जाता है। तो किस तरह हम इसको क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अपना सकते हैं, वेयर वी हैव devotee focused leadership, involvement of people, system approach to management, continual improvement and factual approach to decision making। जो बाहर की संस्थाओं में जिस प्रकार ISO 9001 और ISO 22000 किचन के लिए हैसअप प्रयोग किया जाता है, उसको हमने अप्रोच किया। where we have well defined vision and goals, clear policy, standardized processes, or all of these have been implemented, applied and experimented, and this has resulted in tremendous improvement in the quality of what we can offer to the people. So these are the different aspects of an ISO system. The vision, policy and goals of the temple must be clearly defined. Roles and responsibility must be defined. Processes must be in place. Most temples have deity worship, and all of that deity worship processes must be standardized. Replication of various processes. ISKCON has 750 temples, so we are trying to replicate across the whole world. And then how we can pass it on to the next generation and note how people are getting satisfied by receiving these services. And then if there is any corrective mechanism, it should be noted down. So therefore, these are the ingredients of a strong organization, where the vision of the policy objective must be written. Management responsibilities must be very, very clearly defined, who will do what. Process documentation should be in place, and that we have already mentioned in one of the websites which I'll share with you. Regular training होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, कौन कहाँ पर क्या करेगा. Most importantly, जब कुछ कोई problem आती है, something is not working out, that non-conformity, what went wrong, that must be noted and discussed. Internal audits must be in place, and continuous improvement must also happen. So therefore, this is the quality objective we had mentioned with respect to ISKCON specifically, and this is just an example of what we did with respect to mapping the 7 purposes with the objective. That means your generic objective must be there. For example, sharing knowledge of Gita. Okay, that objective is for a specific department called Journey of Self-Discovery Course Department. But what is the specific objective? We have to increase the number of graduates who come out of this. So this needs to be properly defined and documented. Isi tarah, another general objective of ISKCON is to bring members together. But then with respect to the connected departments, हमारे कई मंदिर के डिपार्टमेंट धाम यात्रा निकालते हैं, कभी रविवार को उत्सव होते हैं. So that is the departments which are connected to that objective. But then each of those departments should also have a specific objective and measure that every year कि इस साल में वो objective achieve हुआ कि नहीं हुआ. तो धाम यात्रा का specific objective क्या है? इस साल में number of यात्रीज जो धाम पे जाएंगे वो बढ़ रहे हैं कि नहीं, and the improvement of the experience of that. And then we check like that. Or devotee satisfaction during Sunday festival. इस तरह से हर एक का आपको जेनरिक कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाना आवश्यक है. बुक डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आप देखिए, हमारे प्रभुपाद जी ने कहा कि पब्लिश डिस्ट्रीब्यूट मैगजीन्स, बुक्स एंड अदर राइटिंग्स, विच इज़ द डिपार्टमेंट? बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट.
व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव? इंक्रीज बुक सेल। तो प्रभुपाद जी जब लंदन पहुंचे तो उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? प्रभुपाद जी ने कहा अंग्रेजों ने पिछले 300 वर्षों से भारत से हीरा सोना चांदी मोती सब लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न भगवत गीता लूटना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया हूं। और तब से लेके आज तक इस्कॉन ने पूरे विश्व भर में आपके जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि पिछले 55 वर्षों में इस्कॉन ने 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दिए हैं 80 भाषाओं में। तो ये तभी हो पाया जब इस तरह का हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तय करें और उसको निर्धारित करें। तो इसको PDCA साइकिल बोलते हैं, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इस्कॉन के मंदिरों में इस प्रकार हम लोग स्थापित करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्थापित होता है मंदिर के अंदर। राशि मैट्रिक्स अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्ट, इन्फॉर्म। क्योंकि मंदिर में किसी को पूछो किसकी जिम्मेदारी है, बोले अब सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। भगवान तो कर रहे हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, अकाउंटेबिलिटी किसका है, कंसल्ट कौन करेगा, इन्फॉर्म किसको करना है। तो इस तरह से हम लोग राशि मैट्रिक्स बनाते हैं और इसको निर्धारित करते हैं कौन कौन क्या क्या करेगा। ये अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे इस्कॉन के मंदिरों में, विश्व भर में 750 मंदिर हैं, उसमें ये सब अलग अलग मंदिर चलते हैं। ये पूरा प्रोसेस फ्लो हमारा मंदिर का बनता है कि नया आदमी जो ऑरेंज में दिख रहा है जब आए तो या तो बुक से आएगा या गोविंदा में भोजन करने आएगा या यूथ प्रोग्राम से आएगा। तो फिर उसके बाद उसको अंदर लेते हैं, गेस्ट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से उसको कोर्स के थ्रू अंदर लेते हैं, फिर मेंटर के अंदर डालते हैं, फिर वो भक्त बनता है। तो भक्त बनने के बाद उसके लिए अलग अलग क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कभी वो धाम में जाएगा, लीगल के साथ कनेक्ट होगा, किचन में जाएगा, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स उसको सर्विस देते हैं। तब इन सब सर्विसेज को देखकर वो फीडबैक देगा, वो फीडबैक को इम्प्रूव करने का एक प्रोसेस है। वो रिकमेंड देने के बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रेनिंग दें, अवेयरनेस बढ़ाएं, इंटरनल ऑडिट्स करें और करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लें। तो इस तरह ये मंदिर चलाने के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। ये यहाँ पर इसको कहते हैं सिस्टम ऑडिट बॉडी फॉर डेवलपमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग, ऑडिटिंग, रिकमेंडिंग, सर्टिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग, अलग अलग इस्कॉन मंदिरों के हम लोग इस तरह सर्टिफिकेशन देते हैं। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन इसे देखना है तो एक वेबसाइट में बताता हूँ, organizeyourtemple.com, ORGANISE yourtemple.com के अंतर्गत आप देखोगे ये डैशबोर्ड है। इसके अंदर कोर्सेस हैं, नॉलेज एक्सचेंज है, अलग अलग प्रकार से हम लोग ने मंदिरों को मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या हमने वेबसाइट्स तैयार किया है, ये सब हमने उसके अंदर दिया है। किसी भी मंदिर को अपना ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना है और क्वालिटी एक्सेलेंस लाना है तो केवल इस एक वेबसाइट के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। Organizing temples is essential for the growth and impact, and embracing technology and sharing best practice will lead to success. कई कोर्सेस हैं, ये सारे कोर्सेस भी इसी वेबसाइट के अंदर आ गए हैं और ये चिल्ड्रंस कोर्सेस हो गए और बाकी अलग अलग प्रकार के। अच्छा, दूसरा है नॉलेज एक्सचेंज। 750 मंदिर हैं तो एक मंदिर के अंदर क्या हो रहा है दूसरे मंदिर के साथ शेयर करने के लिए हम लोगों ने एक नॉलेज शेयरिंग पोर्टल बनाया है। कुछ मंदिरों में जो सक्सेसफुल कार्य हो रहे हैं जैसे फंड रेजिंग के, कांग्रेगेशन के, किचन के, ये सब हमने उनको डॉक्यूमेंट किया है और दूसरों के साथ शेयर किया है। लीडर्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं और लीडरशिप एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और हाउ टू ऑर्गेनाइज हैंडबुक्स बनाए हैं। गोविंदास रेस्टोरेंट कैसे चलाना है, इसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी है। जीरो से लेके कोई भी स्टार्ट कर सकता है। भगवत गीता का इंट्रोडक्टरी कोर्स कैसे चलाना हो, आप केवल डायरेक्ट ओपन सोर्स organizeyourtemple.com में जाकर यहाँ हाउ टू ऑर्गेनाइज हैंडबुक्स में क्लिक कीजिए। सारा ज्ञान ओपन में अवेलेबल है, हर चीज़ निःशुल्क यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। हम चाहते विश्व में अधिक से अधिक मंदिर हो। आज भारत में 70,000 अस्पताल हैं लेकिन 20 लाख मंदिर हैं। तो सोचिए इन मंदिरों को सुधारना कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, पूरे विश्व के जितने इस्कॉन मंदिर है वो सभी एक जगह पर हमने उसको GPS के अंदर डाल दिया। सारे इस्कॉन के वेबसाइट्स इसके अंदर आ गए और हम लोग पूरे विश्व भर में जितना मंदिर चला रहे हैं। ये पेरिस का मंदिर है, 650 मंदिर, 95,000 डिवोटीज इनिशिएशन ले चुके हैं। जैसे मैंने बताया 50 करोड़ के ऊपर बुक्स, 110 रेस्टोरेंट
प्रतिदिन हम लोग 30 लाख प्लेट प्रसादम बांट रहे हैं। 1.2 million of food served daily and 3 billion meals have been distributed so far। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पद यात्रा जो निकली भारत से लगभग 2.5 लाख किलोमीटर पूरे विश्व भर में चल चुकी है। ये हम लोग के विश्व के कोने कोने में मंदिरों की एक झांकी आप देखिए, लंदन में, मॉस्को में और कई कई मंदिरों में जो है पूरे विश्व में ये चल रहे हैं। ये सब झांकी है। साउथ अफ्रीका का ये डरबन का मंदिर है, राधा राधानाथ मंदिर। ये पूरे विश्व भर में ए से लेकर जेड तक मंदिरों की लिस्ट है। अफ्रीका में, साइबेरिया में, चाइना में भगवान को हमारा भोग लगता है, साथ में चॉपस्टिक रखते हैं वहाँ के हिसाब से। तो ये इस्कॉन मंदिर पूरे विश्व भर में जो बने हुए हैं और ये सब उनके पीछे जो प्रक्रिया चल रही है। रशिया के अंतर्गत, यूक्रेन के अंतर्गत हम लोगों का उत्सव होता है हरे कृष्णा का, जिसके अंदर 12,000 भक्त लोग आकर चैंटिंग और डांसिंग करते हैं। ये स्ट्रीट्स पर देखिए वेस्टर्न लोग, स्त्रियां कैसे साड़ी पहनकर हरिनाम संकीर्तन कर रही हैं। लोग कहते हैं कन्वर्जन का क्या कर रहे हैं, इस्कॉन कहता है हम तो जूइश क्रिश्चियन सबको कन्वर्ट कर रहे हैं, सनातन धर्म में लेके आ रहे हैं। तो इसलिए कई बार भारत में लोग आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं भारत करता क्या है। तो उडुपी रेस्टोरेंट में एक यात्री आए जर्मनी के और उनको भोजन खिलाया गया केले के पत्ते पर। तो इडली, डोसा, वड़ा सब खाने के बाद वो केले का पत्ता देख के घबरा गया, बोला क्या करना है इसका समझ में नहीं आया, केले का पत्ता भी खाने लगा। बाहर जाते जाते मैनेजर ने पूछा सर भोजन कैसा था, बोला भोजन अच्छा था, सलाद बहुत कड़क था। तो इसलिए भारत को समझना इतना कठिन है, लेकिन स्वामी प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर आज के दिन 5 लाख लोग विदेश में हरे कृष्णा के भक्त लोग कीर्तन में लगे हुए हैं। तो इस तरह से पूरे विश्व भर में प्रचार चल रहा है। ये देखिए पाश्चात्य देश के लोग हरे कृष्णा का कीर्तन संगीत में कर रहे हैं, संगीत के लय में पूरी तरह लगे हुए हैं। और बड़े बड़े वहाँ पर रेस्टोरेंट्स के साथ साथ वहाँ पर सुंदर सुंदर गेस्ट हाउसेस भी बने हुए हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, जो कि मायापुर में 900 करोड़ का ये मंदिर बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर 2025 में तैयार होगा मायापुर बंगाल में। ये वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है हमारा। और यहाँ पर देखिए इसकी झांकी। और 80 के ऊपर फार्म कम्युनिटीज विश्व भर में हमारे चल रहे हैं। तो ये विज्ञान को लेकर साइंस और रिलीजन को जोड़ते हुए शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट चालू किया और इसके अंतर्गत लोगों को धर्म और विज्ञान दोनों में किस तरह एक साथ समन्वय लाएं, उसकी जानकारी भी शिला प्रभुपाद जी ने दी। अब प्रथम बार इस्कॉन, जो कि अब तक विश्व के 750 शहरों में था, पालघर जिले में, पालघर जो कि बहुत बदनाम हुआ किसी कारण से, आप लोग सब जानते हो। आपको जान के बहुत आनंद आएगा कि इस्कॉन अब पालघर में 100 एकड़ में एक पूरा वृंदावन तैयार किया जा रहा है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट के आधार पर पूरे यूनाइटेड नेशंस के 17 SDGs को हम लोग अपना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन सबको लेकर बड़ा सुंदर 10,000 गांव के जो ग्रामीण किसान हैं उनके साथ काम करते हुए स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और रूरल इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर NGO सेक्टर का, जो कि गोवर्धन स्किल सेंटर है। और यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट ग्रीन प्रिंसिपल्स के आधार पर तैयार किया है। और ये स्पिरिचुअल टूरिज्म और इको टूरिज्म का बहुत बड़ा एक सुंदर उदाहरण है। और आप लोग कभी बम्बई साइड आएंगे तो बम्बई से लेकर केवल 2 घंटे की दूरी पर गोवर्धन इको विलेज पे आप आइए और स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट का एक सुंदर आप उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत ही शीघ्र हम लोग यहाँ पर विश्व के कोने कोने से लोगों को निमंत्रण देकर
यहाँ पर उनको होस्ट कर रहे हैं। 120 कमरे का यहाँ पर आयुर्वेदा वेलनेस का हेल्थ केयर रिजॉर्ट हमने तैयार किया है। मैं इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमीशन का मेंबर हूँ। इस्कॉन पूरे विश्व के सभी हिंदू मंदिरों को हर प्रकार से सहायता देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, नॉलेज में, बुक्स में, कोर्सेस में पूरी तरह तैयार है और निःशुल्क रूप से हम लोग तैयार करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों को। ये मेरा ईमेल आईडी है gaurangadas@ecovillage.org.in। ये मेरा फ़ोन नंबर है 9930141797। हम चाहते हैं कि विश्व के कोने कोने में जितना हो सके हम लोगों को मंदिर चलाने में, मंदिर की व्यवस्था को सुधारने में हर प्रकार से मदद करें। हम इस्कॉन की ओर से यहाँ के टेम्पल कनेक्ट ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको यहाँ पर निमंत्रण दिया और आशा है कि भविष्य में हम इस प्रकार के और कार्यक्रम साथ साथ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री आरवी बालासुब्रमण्यम जी से, श्री श्रीकांत भारती जी से, श्री गिरीश कुलकर्णी जी से कि वो प्लीज स्टेज पे आएं और सर को फेलिसिटेट करें। मैं मेघा घोष जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और श्री गौरांग दास प्रभु जी को फेलिसिटेट करें।